Hello everyone, this is day number 16 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with an important topic which is linear equations. Linear equations के questions आपको ज़रूर मिलेंगे. Every year you get around 2 to 3 questions on this. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन कैसी है. अगर नहीं भी है तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए. ट्राई टू डेवलप दैट कैलकुलेशन. बहुत ज़्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं है. इट्स ऑन द ईजियर एंड टू लुक एट. Now, this is our 30 days of CSAT program. You can have a look. We have covered till day number 15. आप मुझे बताओ क्या यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है regarding the important topics that we have discussed so far. Today we are starting with linear equation, followed by we would be doing set theory, series based question, and you can see many important topics coming up, that is data sufficiency 1, data sufficiency 2, data sufficiency 3, and then certain reasoning plus arithmetic topics, core arithmetic topics are to be held. Now, this is basically our PYQ playlist UPSC CSAT wherein you get all the PYQ questions. ये year wise categorized हैं as 2025, 2024, 23, 22, 25 गोइंग अप टू 2011. मैं बोलूँगा आप इनको तो ज़रूर कर लो. कलेक्टिवली आप हमारे लेक्चर्स देखो और इसको पूरी तरीके से कवर करो. विद दिस यू विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू लुक एट द पेपर. And this is some of the prediction that we did for 2025 as well as 2024. 35 and 37 questions were from our practice sheets and full length test. तो आप इसको भी देख सकते हो. Now, you can join our Telegram channel because with this we come up with so many programs. और जो भी important information है हमारे end पे जो हमें आपके साथ share करना है, आपको यहाँ पे update मिलते रहेंगे. So I hope all of you have joined this. Now, regarding the course, crash course, we have foundation course is only for 2027. There's no point of doing the crash course right now. The point is only about test series. Currently, if you wish to join, you can join the test series program. Connect on my WhatsApp. I'll be sharing the details with you. Now, let's look at this basic question. A 60-page book has n lines per page. अगर एक book है, it has got 60 pages and has n lines per page. So every page has got n lines and we have a total of 60 pages. So what is the total writing space if I talk about 60 into n? ये मेरा पूरा writing space होगा. Now if the number of lines were reduced by 3, अगर आप number of lines को reduce कर दो by 3 and increase the number of pages by 10. So now the number of pages becomes 70. Number of lines becomes n minus 3. This is your writing space. To give the same writing space. क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि these two will give you that exact writing space. So these two are actually same. Now when we have this equation, इसी को बोला जाता है linear equation. आपने equation form कर लिया. Now just try to simplify it. So 60n, this is equal to 70n minus 210. Here you can write it as 210 is equal to 70 minus 60, which is 10n, or n is equal to 210 upon 10, which will give you n being 21 lines. What is the value for n? 21. If they ask you what is the number of lines in the new booklet, so 21 minus 3, which is 18 lines per page, and here we have 21 lines per page. I hope this is clear. Moving on to the next one. A test consists of 25 MCQ questions. Very important question. Have a look. Each correct answer gives you plus 4 marks and each incorrect gives you minus 1 marks. If a candidate attempted all the questions and scored 75 marks, then how many questions were wrong? ठीक. I'm sure there were 25 MCQ questions. I may, when I start with the attempt part, I may choose to do some correct and I may choose to do some wrong. तो मैंने जो total attempt लिया उसमें से कुछ correct होंगे. I'm trying to denote the correct with C, the wrong with W. This is collectively going to be 25. क्योंकि इतने ही तो number of questions हैं. You attempt 25 question, आप बोलो कि यहाँ पे 10 question correct हुए, 15 गलत हो गए. So you add this, you will get 25. So this is how you can represent or form one equation.
Let's look at another part. With every correct question you give, you get 4 marks positive. So 4 marks into every correct question. I give 10 correct questions, so 4 into 10, 40 marks. But with every incorrect, I lose out 1 marks. So minus 1 marks for every wrong question that I have wrongly attempted, or question that I have attempted wrongly. And the total score that I scored with this is actually 75. इस तरीके से you try to make another equation. Now we have two linear equations with us. We'll try to solve them simultaneously. How many questions were wrong? Now we need the number of wrong questions. So when we need the number of wrong questions, you can see wrong is here. So we can make any of these variables same. मतलब कैलकुलेशन जब आप स्टार्ट करते हो, यू कैन मेक करेक्ट सेम. कैसे करोगे? यहाँ पे 4 है तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ 4. एज सुन एज आई मल्टीप्लाई दिस विथ 4, it would give me 4c plus 4w and this would give me 100. ये बात समझ में आ रही है? ये एक बड़ा वैल्यू है, इसके नीचे ये छोटा वैल्यू लिखो 4c माइनस 1w एंड दिस इज 75. आपको दिख रहा है, आप इस पहले वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4w माइनस माइनस 1w, तो ये कैसे लिखोगे आप? 4w प्लस 1w. इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन पार्ट. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी इसका रिवर्स नेगेटिव साइन. नाउ दिस विल बी सिंप्लीफाइड बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यूज एलिमिनेटेड. Next, 4w minus 1w is basically plus 1w is basically 5w and this is subtracted, so 25, or w is equal to 5. w means 5. ये क्या indicate कर रहा है? Wrong questions were 5 and total were 25, so correct question were 25 minus 5, 20. And total क्या है questions? I can say total question is 25. This is one way to solve such problems. Another way क्या है कि आप इसे जल्दी लिखो. करेक्ट प्लस रॉन्ग इज 25 क्वेश्चंस. देन विथ एवरी करेक्ट आई गेट 4 मार्क्स, विथ एवरी रॉन्ग आई लूज आउट 1 मार्क्स एंड दिस इज इक्वल टू 75 मार्क्स. इस बार मैं बोल रहा हूं इसको सेम करते. ये ऑलरेडी सेम है, 1w है ना, ये 1w लिखो या नहीं लिखो, इट इज सेम. तो लेट्स एलिमिनेट दिस. एलिमिनेट करने का सब सिंपल तरीका क्या है? प्लस और माइनस गिवन है, इट मीन्स दे कैन बी एलिमिनेटेड. तो सिंपली ऐड करने पे कुछ नहीं करना है, आप इसको एलिमिनेट करो. ये ऐड होगा तो 4 + 1 5c एंड दिस इज इक्वल टू 100. c इज इक्वल टू 20. इफ c is 20 then 100% w has to be 5. तभी तो 20 + 5 will give you 25 questions in total. क्लियर है? इन वॉट एवर वे दे आस्क यू, यू कैन मार्क सच क्वेश्चंस. ये एक काफी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है आपके लिए. Moving on, this is a question from the year 2021. I would ask you to solve it in no time. See, it may look lengthy, दिखने में जरा वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, लेंदी है, स्टेटमेंट्स है, बट ये काफी सिंपली सॉल्व होता है. जय एंड विजय spent an equal amount of money to buy some pens and some pencils of the same quality from the same store. If Jay bought, जय के लिए क्या गिवन है? 3 pens plus 5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils. ये क्या गिवन है? They use equal amount of money. तो अगर मैं विजय की बात करूं, विजय के लिए क्या आ रहा है? 2 pens plus 7 pencils. ये बिल्कुल सेम होगा. ये बात समझ में आ रही? क्यों ऐसा सेम होगा? बिकॉज दे हैव यूज्ड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी. जितना मनी इसके पास था उससे ये खरीदा, इसके पास ये था, ये खरीदा. अब 3 पेन्स है और यहाँ पे 2 पेन्स है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो इट विल बी 1 पेन. यहाँ पे 5 है, उस तरफ लेके जाओगे तो 7 minus 5 is 2 pencils. So 1 pen is equal to 2 pencils. This is the price point. A pencil cost more than a pen. A pencil cost more than a pen? No. A pen cost more than a pencil. The price of a pencil is equal to that of a pen? No. The price of a pen is 2 times the price of a pencil. 100% true. यही तो, the price of a pen is 2 times the price of a pencil. Next, in an objective type, देखो ये मैंने बोला भी आपको कि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, चांसेस है इस बार पूछा भी जाए, ध्यान से समझना. इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट
90 question, 5 marks were allotted for every correct and 2 marks were allotted or deducted for every wrong answer. आपको क्या पता है, correct plus wrong would be 90 because there are 90 questions in total. With every correct, you get 5 marks. So 5 into correct, and then you have your marks are deducted, 2 marks. 2 marks are deducted for every wrong answer. And you have scored, after attempting all the 90 question, a student got 387 marks. All right. What is the number of incorrect responses? Incorrect का मतलब ये मुझे चाहिए. अगर मुझे W चाहिए तो मैं दूसरे वाले वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करूंगा. कैसे कर सकता हूं? I can multiply this with 5. If I multiply this with 5, तो ये क्या बन जाएगा? It would be 5C plus 5W and this is 9 5s are 45. यहाँ पे क्या आएगा? 5C minus 2W, this is 387. नाउ अगर मुझे इन दोनों को एलिमिनेट करना है, दोनों का सिंबल सेम है, तो मुझे माइनस करना होगा. माइनस करने का मतलब प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया. नाउ दिस विल बी एलिमिनेटेड एज इट इज. 5W plus 2W is basically 7W, and what do we have here? 50 and 13 is 63. So W is basically 963 by 7. Wrong questions. Wrong responses were 9. What is the number of correct responses? आपके पास total given है C plus W. C plus W is 90. I know wrong responses were 9. So correct responses have to be 81. 81 plus 9 is 90. तो कुछ भी पूछ लिया जाए with one variable that you have, आप दूसरे पे quickly jump कर सकते हो. कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. Now, Rakesh and Rajesh together bought 10 balls and 10 rackets. Okay. Rakesh plus Rajesh. And they have spent 1300 and 1500 rupees. Okay. And they have bought 10 balls and 10 rackets. And they have spent 1300 and 1500 rupees. So a total of, चलो लिख लो पहले से. If each racket costs 3 times a ball, 1 racket is equal to 3 balls. ये निकल के आ रहा है. What is the price of a racket? What is the price of a racket? So from here I can say 1 ball is equal to R by 3. 1 ball is equal to R by 3. ठीक है. Now this can be written as 10 into 1 ball. 1 ball के जगह पे R by 3 plus 10R. This is equal to 2800. ये क्या बन गया? 10R plus 30R. बिकॉज आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ये 3 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा. दिस इज 2800 और यू कैन से 40R is equal to 2800 into 3. R is equal to 2800 into 3 by 40. Now let's simplify. 1010 gone. 4 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 77 into 3 is 210. Option C is your correct fit. Clear है? This is the price point for rackets. Rackets चाहिए था. ये conversion क्यों किया? Why did we do this conversion? सोच के बताओ. ये conversion सिर्फ इसलिए किया because I needed the price of racket. तो मुझे सारे variables R के format पे चाहिए थे. मैंने B वाले को R के format पे convert कर दिया. These are part of the conversions. Now, P, Q, R, S be natural numbers such that P minus 2106 is equal to Q plus 2017. This is equal to R minus 2018. This is equal to S plus 2019. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख रखा है. क्या है कॉन्सेप्ट? समझना. अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि A minus B, the result for this is positive. तो इससे आप क्या समझते हो? अगर दो एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका 100% ये मतलब है कि A इज ग्रेटर देन B. ये बात समझ में आ रही है? टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स एज वेल. सारी चीजों को कंसिडर कर लो. अगर आपने दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया है
और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स जो पहला वाला क्वांटिटी है वो हमेशा दूसरे वाले से बड़ा है. दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस. क्लियर? नाउ if you look at this part, we can which one of the following is the largest? Okay, so अगर मैं सिंपली इसे सिंप्लीफाई करूं तो Q इस तरफ आएगा, P माइनस क्यू, दिस इज 2017 प्लस 2016. तो क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है? यस. तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि आउट ऑफ P, Q, R and S, P is greater than S, so there is no, P is greater than Q, therefore there is no point of Q being the largest among the all four. क्लियर है ना? अभी इन दोनों को तो मैंने कंपेयर कर लिया. अभी इस स्टेटमेंट को उठाते हैं. क्या गिवन है देखो, R minus 2018 is equal to S plus 2019. From here R minus S is equal to 2019 plus 2018. क्या ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है? यस, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है. देन डेफिनेटली R इज ग्रेटर देन S. तो मुझे ये समझ में आ रहा है R और S को जब कंपेयर किया तो R इज ग्रेटर. नाउ वी ओनली नीड टू कंपेयर P एंड R. P एंड R को कंपेयर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? समझना. P minus 2016, this is equal to R minus 2018. Now, समझना जरा, यहां पे 16 है, यहां पे 18 है. कौन सा क्वांटिटी किस तरफ जाना चाहिए? अगर ये उस तरफ जा रहा है तो क्या यहां पे एक नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा? अगर आप इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो पॉजिटिव आएगा. इसका मतलब है कि 2018 माइनस 2016, दिस इज इक्वल टू R माइनस P. ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको. और इस केस में आप R से P को माइनस कर रहे हो, देयरफॉर R इज ग्रेटर देन P. सो व्हेन वी कंपेयर R विथ P, R इज द ग्रेटेस्ट. सो R इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल फोर ऑफ देम. ठीक है, क्लियर है? मूविंग ऑन. A has some coins. He gives half of the coins and two more to B. B gives half of the coin and two more to C. C gives half of the coin and two more to D. And thereby, the number of coins with D now is the smallest two-digit number. The smallest two-digit number is 10. तो D के पास फाइनली है 10 coins. और ये 10 coins कैसे पहुंचे? C gives half of the coin and two more to D. तो पहले इससे आप 2 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने आ गए? 8. सो इसके पास कितने होंगे? हाफ ऑफ द कॉइन. सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड देन टू मोर. तो इसके पास इसका डबल होना चाहिए. सी के पास होने चाहिए 8 का डबल 16 कॉइन्स. अब बी पे आ जाओ. बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू सी. तो -2 करो. -2 करोगे यहां पे आ जाएगा 14. और इसका ही डबल बी के पास होना चाहिए. इसका डबल क्या है? 28. अगेन सब्ट्रैक्ट 2, वी गेट 26. 26 का डबल करोगे तो ए के पास कितने हो जाएंगे? 52. How many coins does A have in the beginning? 52 coins. अब जरा यहां से आप स्टार्ट करके चेक भी कर सकते हो. 52 माइनस हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर. हाफ करो 26 प्लस 2 करो 28 हो गया. फिर हाफ करो 14 प्लस 2 करो 16 हो जाएगा. 16 को हाफ करो 8, 8 पे 2 ऐड करो 10 हो जाएगा. दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम द स्टार्ट. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ट्राई टू डेवलप दैट कनेक्ट. और आपको एक पिवटल पॉइंट चाहिए होगा कि व्हाट इज द वैल्यू. तो वो जनरली पहले वाले का हो सकता है, या अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा जनरली वो लास्ट वाले एलिमेंट का वैल्यू गिवन होता है. जैसे यहाँ पे क्वांटिफाइड क्वांटिटी गिवन है कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दैट इज 10. मूविंग ऑन. 5 friends P, Q, X, Y, Z purchase some notebooks. The relevant information is given. If each notebook is priced at 40, then what is the total cost of all the notebooks? तो मुझे क्या करना है? 40 into P plus Q plus X plus Y plus Z. So I should know इसका क्या रिजल्ट आ रहा है. अगर मैं ये फिगर आउट कर लूं तो मेरा पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ P plus Q is given somewhere. Yes, P plus Q is 21. So I can say this I know is 21. क्या कुछ और given है? Z purchased 8, Q purchased 5, X plus Y together bought 28. So this also I know is 28. I just need to figure out the value for Z. अगर Z निकल के आ गया तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा रिजल्ट इनमें से कुछ आ जाएगा. Z purchased 8 notebooks more than X. So Z is equal to X plus 8. अब X के टर्म पे कुछ देखो, क्या दिख रहा है आपको? P purchased 5 notebooks more than X.
तो x प्लस 5 इज इक्वल टू p। Q परचेस 5 नोटबुक्स लेस देन p। तो यहां पे ऐसे भी बोल सकते हो x प्लस 5 इज p और p minus 5 is equal to x. So Q purchased 5 notebooks less than P is basically Q purchased P minus 5 or Q purchase equal to X. From here we know P plus Q is 21 और P के पास 5 एक्स्ट्रा है, ये 5 यहां से हटा दो, कितने होंगे 16। तो P प्लस Q अब इक्वली डिवाइड होगा 16, तो ये 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, बट P के पास 5 एक्स्ट्रा है। सो P के पास होंगे टोटल 13 नोटबुक्स। Q के पास कितने हैं 8। अगर Q के पास 8 है, X के पास भी 8 होगा। X के पास 8 होने का मतलब है Z के पास होंगे टोटल 16। तो Z हैज 16। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। सो वी हैव 28 और 1 यहाँ से ऐड करोगे और यहाँ से भी एक 1 ऐड कर लोगे तो 30 एंड 20 इज 50, 50 एंड 15 is basically 65. 65 into 40. 6 4s are 24 into 260. 2600. Clear है क्या? चलो next. A person ordered 5 pairs of black shoe socks and some pairs of brown. Some को मैं n मान लेता हूँ. N pairs of ordered pairs. Ordered pair का क्या मतलब है? Left and right are different. जैसा होना भी चाहिए, एक शू पे एक सॉक्स पे लेफ्ट और राइट डिफरेंट होने चाहिए, ग्लव्स पे लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट होने चाहिए, उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। द प्राइस ऑफ अ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। ऑल राइट, सो प्राइस ऑफ 1 ब्लैक इज इक्वल टू 3 ब्राउन। अगर बी से मैं ब्राउन डिनोट कर रहा हूं, बी एल से मैं ब्लैक डिनोट कर रहा हूं, क्या गिवन है वो देखते हैं। बिल कैसे बनेगा? 5 इंटू द नंबर ऑफ ब्लैक पेयर्स plus n into the number of brown, and also we know that while prepare, इसी से बिल बन जाएगा, मतलब जितने मैंने परचेस करे हैं इससे बिल बनना चाहिए। While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs. उसने क्या करा, गलती से ये 5 जो यहाँ पे है उसको इस तरफ लेके आ गया, ये n जो यहाँ पे उसको इस तरफ बोल दिया। मतलब आपने 5 ब्लैक पेयर सॉक्स खरीदे हैं, उसने n बोल दिया, मतलब n का जो भी वैल्यू आएगा, और 5 किस तरफ बोल दिया, ब्राउन के लिए बोल दिया। तो उसने क्या करा, गलती से 5 इंटू इससे ऐसे लिखते हैं इसे, n इंटू ब्लैक प्लस 5 इंटू ब्राउन। और इस मिस्टेक की वजह से क्या हुआ, इट इंक्रीज द बिल बाय 100%। 100% से प्राइस बढ़ जाने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्राइस अभी 10 है तो ये 20 हो गया, अगर 1 रुपए है तो 2 रुपए हो गए, अगर 100 रुपए है तो ये 200 रुपए हो गए, मतलब जस्ट डबल हो गया, इंटू 2। ये बात समझ में आ रही है? ये इंटू 2 वैल्यू है, तो ये अगर इंटू 2 वैल्यू है, किस में इंटू 2 करोगे कि ये रिजल्ट बनेगा? पहले वाले में। तो पहले वाले में अगर मैंने इंटू 2 कर दिया तो दिस एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिस। 10 इंटू 2 इज 20, 20 इसके बराबर है ना। 100 इंटू 2 इज 200, ये इसके बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? नाउ एक और सिनारियो है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन, मुझे n की वैल्यू चाहिए, एंड आई ऑल्सो नो 1 ब्लैक इज इक्वल टू 3 ब्राउन। तो जहां पे भी ब्लैक है मैं उसे क्या लिख सकता हूं, 3 ब्राउन। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3 ब्राउन प्लस n इंटू ब्राउन, एंड दिस इज होल ब्रैकेट 2, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू ब्राउन प्लस 5 इंटू ब्राउन। अब क्या आपको यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है? यहाँ पे भी ब्राउन दिख रहा है, कॉमन ले लो। ब्राउन कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस n। यहाँ पे क्या ब्राउन दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है, यस, कॉमन ले लो ब्राउन, क्या आएगा 3n प्लस 5। अब जरा आराम से सिंप्लीफाई करो, ये ब्राउन और ये ब्राउन कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 15 30, ये क्या बन जाएगा 2n, दिस इज 3n प्लस 5। 2n को उस तरफ लेके जाओ, 5 को इस तरफ लेके जाओ, n की वैल्यू 25। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट फिट। दिस इज पार्ट ऑफ परसेंटेज एज वेल, पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन एज वेल। ऐसे क्वेश्चंस को आप कर भी सकते हो ओनली व्हेन यू हैव अ बिट ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग कि अगर 100% से बिल इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, अगर 200% से कोई चीज इंक्रीमेंट हो रही है तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट।
तो ये कहीं ना कहीं ये पार्ट इज बेसिकली परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग, वो क्लियर होगी तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। नाउ टेक दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन बिकॉज दिस आर ऑल PYQ क्वेश्चन। इनको ट्राई करो, देखो बन रहा है नहीं बन रहा है, आप इनको बना सकते हो, है ना। 8 oranges cost as much as 5 apples, 5 apples as much as 3 mangoes, and 4 mangoes as much as 8 pineapples. If 3 pineapples cost rupees 36, then an orange cost is how much? So you can start with 8 oranges is as good as 5 apples and 5 apples is as good as 3 mangoes. ऐसा एक इक्वेशन बन सकता है। ऑल्सो 4 मैंगोज इज इक्वल टू 8 पाइन एप्पल्स, ये भी बन सकता है। 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 पाइन एप्पल्स। 3 पाइन एप्पल्स का कॉस्ट है 36, सो 3 पाइन एप्पल्स इज 36, 1 पाइन एप्पल इज 12। अगर 1 पाइन एप्पल 12 है तो 2 इंटू 12 कितने हो जाएंगे? 24। 24 किसका प्राइस है? एक मैंगो का। आपके पास क्या डेटा गिवन है? 3 मैंगोस, और आपसे पूछ रहा ऑरेंज का कॉस्ट। तो 8 इंटू ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 इंटू मैंगोस। 1 मैंगो इज प्राइस एट 24, सो 3 मैंगोस क्या होगा? 3 इंटू 24। और ये ऑरेंजेस को अगर मैं लिखूं तो अपॉन 8, सिंप्लीफाई करो, सो यू वुड बी गेटिंग 1 ऑरेंज प्राइस्ड एट ₹9। ऑप्शन ए बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोशिश खुद से करो सो दैट आप इस पे काम कर पाओ। जैसे यहाँ पे देखो, अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ ₹2 and 5। तो अगर मैं 2 को T से डिनोट करूँ, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, लेट्स से इट इज डिनोटेड बाय F, दिस इज इक्वल टू 100 कॉइन्स। दूसरा सिनेरियो क्या है? अमाउंट। तो एक 2 रुपये के कॉइन से 2 रुपये बनेंगे, तो 2 इंटू T प्लस 5 इंटू F, दिस इज इक्वल टू द अमाउंट 320। अब बस इनको सिंप्लीफाई करो, नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन चाहिए तो इसको सेम करो 5 से मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन को प्रोसीड करो और मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। आई होप ये तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। प्लीज टेल मी द रिजल्ट एज क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? टाइप इन द कमेंट बॉक्स क्या करेक्ट सोल्यूशन है। मूविंग ऑन, 3 mangoes, 4 bananas cost ₹36 and for 5 more you can get 4 mangoes। सिमिलर नोट पे है, आप ज़रा ट्राई कर लेना, ये भी आपसे बन जाएगा। हियर यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई द सोल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। टेस्ट करो, अभी मैंने बताया आपको स्टेप्स कैसे लिखने हैं। मैंगोज है तो आप इसे 3M लिखो, बनानाज है आप इसे एंड है, सो प्लस 4 बनानाज, दिस इज इक्वल टू 36 and for 5 rupees more you can get 4 mangoes plus 3 bananas। 5 rupees more का मतलब 41। How much do 5 mangoes and 5 bananas cost? अभी आप पहले 1 mango या 1 banana निकाल लो, उसके लिए क्या करना, किसी एक को सेम करो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा? मैंगो सेम हो जाएगा, बनाना का प्राइस निकल के आ जाएगा। ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है। Then a last question based on a test consists of 25 MCQs. Each correct will give you 4 marks and each incorrect will give you -1 marks. तो correct plus wrong is basically 25. फिर क्या है? 4 into correct minus 1 into wrong. If a candidate scores 74 marks, how many questions were left unattempted? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सोच के बताना और ये मुझे देखना कि कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। इट विल गिव मी एन आइडिया कि आपने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा है। लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, देखो करेक्ट प्लस रॉन्ग तो हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आई कुड लीव आउट सम क्वेश्चंस, वो एक सिनारियो है और वो तभी काउंट होगा जब क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जैसे यहां पे अभी मेंशन्ड है। तो आप इसको जरा ट्राई करो, सोचो, आपके पास पूरा डेटा है। Take a screenshot of this and start with the solution. Let me know in the comment box what is the correct fit. Also, you can join our Telegram channel for any update regarding the 2026 CSAT program. We also have full length test series, जिसका एक टेस्ट हमने अभी लाइव कर दिया है, वो सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है, आप उसको जाके देख सकते हो। 9 टेस्ट आर प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ आवर कोर्स, 9 FLTs, तो आप उनको भी, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप उनको परचेस कर सकते हो।
All right. Thank you, everyone. Take care. Bye bye. The foundation course is only limited to 2027 students. You can start with your enrollment now. We have already started with our session for 2027 students. For 2026 appearing students, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आई वुड सजेस्ट. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे आप टाइम दोगे तो इसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा. ऑल राइट. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय. हैप्पी लर्निंग.